علیکم، بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیل اشرف۔ بلیٹن کا آغاز کرنے سے قبل ایک نظر نیوز ہیڈ لائنز پر۔ شہر بند کرنا اس وبا کا علاج نہیں، لاک ڈاؤن لگانے کے بعد شہر کھولتے ہیں تو کورونا پھر پھیل جاتا ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے سندھ میں مکمل لاک ڈاؤن کی مخالفت کر دی، کہا 1 اگست سے صرف ویکسینیٹڈ افراد جہاز پر سفر کر سکیں گے۔ مختلف اداروں اور کاروبار سے منسلک افراد کو 31 اگست تک ویکسین لگوانے کی ڈیڈ لائن۔ سندھ میں کورونا نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، ڈیلٹا ویرینٹ کے بڑھتے کیسز کے بعد سندھ میں مکمل لاک ڈاؤن کی بازگشت، 15 دن کے لیے مکمل لاک ڈاؤن کی تجویز، حتمی فیصلہ جمعے کو ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم عمران خان کو شکست نوٹس جاری کر دیا۔ شکست نوٹس بطور پارٹی چیئرمین انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پر جاری کیا گیا، 14 روز کے اندر جواب طلب۔ پاکستان کو افغان بحران کا ذمہ دار ٹھہرانا افسوسناک ہے۔ پاکستان نے امریکہ خطے کا کوئی ملک پاکستانی کوششوں سے برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا، وزیر اعظم کی افغان صحافیوں سے گفتگو۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، کور کمانڈرز، ڈی جی رینجر سمیت دیگر اعلیٰ حکام کی شرکت۔ کراچی میں 11 مختلف جگہوں پر احتجاج پر پابندی کی تجویز۔ ایم پی اے نذیر چوہان کی مشکلات میں مزید اضافہ، تھانہ گرین ٹاؤن میں ایک اور مقدمہ درج۔ مقدمے میں کار سرکار میں مداخلت، جان سے مارنے کی دھمکیوں سمیت دیگر دفعات شامل۔ سیشن کورٹ نے دوسرے مقدمے میں نذیر چوہان کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا۔ رکن اسمبلی نذیر چوہان کو پنجاب اسمبلی نہ لانے پر اسپیکر پرویز الہی برہم، کہا گزشتہ روز نذیر چوہان کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے تھے، کیا یہ پارلیمنٹ کے ساتھ لڑائی چاہتے ہیں؟ باغ آزاد کشمیر کے حلقے اہل 16 کے 4 پولنگ اسٹیشنز پر ری پولنگ کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے درمیان سخت مقابلہ۔ وزیر اعظم عمران خان سے آزاد کشمیر کے سینئر قیادت کی ملاقات، وزارت عظمیٰ سمیت اہم عہدوں کے لیے مشاورت۔ ملاقات کرنے والوں میں بیرسٹر سلطان محمود، خواجہ فاروق، تنویر الیاس اور اظہر صادق۔ ذرائع کے مطابق نو منتخب ارکان 3 اگست کو حلف اٹھائیں گے۔ آزاد کشمیر انتخابات میں مبینہ دھاندلی سے متعلق مسلم لیگ نون کا اجلاس، بھرپور احتجاج کا فیصلہ، پہلے مرحلے میں اپنے اپنے حلقوں اور ڈسٹرکٹ کی سطح پر احتجاج کیا جائے گا۔ معاون خصوصی اطلاعات پنجاب فردوس اشقوان کا کہنا ہے کہ ووٹ کے تقدس کو ہر حال میں بحال رکھا جائے گا۔ آزاد کشمیر الیکشن میں سرکاری مشینری استعمال نہیں ہوئی۔ وزیر مملکت فاروق حبیب کا کہنا ہے کہ ماضی کی حکومتوں نے تعمیرات کے شعبے کو نظر انداز کیے رکھا، دنیا میں تعمیرات کا شعبہ معیشت چلانے میں کردار ادا کرتا ہے۔ وزیر اعظم شعبہ تعمیرات کی ترقی پر خصوصی توجہ مرکوز رکھے ہوئے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا دورہ بحرین، وزیر خارجہ کی کراؤن پرنس شہزاد سلمان بن حمد بن عیسیٰ سے ملاقات، 2 طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو۔ کراچی کے ساحل پر پھنسے بحری جہاز کا 9واں روز تیل نکالنے کا کام جاری، آپریشن میں کے پی ٹی، پاک بحریہ اور میریٹائم سیکیورٹی کے ادارے شامل۔ ملک کے مختلف حصوں میں طوفانی بارشوں، سیلابی ریلوں، لینڈ سلائیڈنگ نے تباہی مچا دی، بنوں میں سیلابی ریلا سب بہا کر لے گیا۔ اسلام آباد میں بارش تھمنے کے بعد امدادی کارروائیاں جاری، کے پی کے اور کشمیر میں بھی کئی مقامات پر رابطہ سڑکیں بند۔ کراچی اور لاہور میں قبضہ مافیا کی تعمیرات پر بلڈوزر چل گئے، کراچی میں جبلی مارکیٹ 164 دکانیں گرا دی گئیں، شالیمار لاہور غیر قانونی تعمیرات مسمار، 2 کنال سے زائد کروڑوں مالیت کی سرکاری اراضی واگزار۔ سرکاری عملے کی محنت رنگ لے آئی، عالم پناہ کا گمشدہ پالتو کتا مل گیا، 2 روز قبل کمشنر گجرانوالہ کا پالتو کتا گم ہو گیا تھا، سرکاری عملہ رکشے پر لاؤڈ سپیکر لگا کر کتے کو ڈھونڈتا رہا۔ پہاڑوں کا بیٹا پہاڑوں کے سپرد، علی ستپارہ کی لاش بیٹے ساجد ستپارہ نے باٹل ٹینک سے لا کر کیمپ 4 میں دفن کر دی، فاتحہ اور قرآن خوانی کی اور پاکستانی پرچم بھی لہرا دیا۔ عرب کے صحرا میں مقام غدیر پر رسول خدا نے حضرت علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے اعلان ولایت کر دیا، کہا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ 1.25 لاکھ اصحاب رسول کے مجمع سے وغن وغن یا علی وغن کی صدائیں، سورۃ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 67 کا نزول۔ دین کامل ہوا، دنیا بھر میں آج عید غدیر منائی گئی۔ اور ٹوکیو اولمپکس کے جوڑو ایونٹ میں پاکستان کے شاہ حسین شاہ کو شکست، ہیوی ویٹ مقابلے میں مراکشی باکسر یونس بیلا کی کیوی باکسر کا کان کاٹنے کی کوشش، ڈیوڈ نے مشکل سے خود کو بچایا۔
हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। सियालकोट में भी तब्दीली आ गई। पंजाब असेंबली के हल्का 38 सियालकोट पर ज़िमनी इलेक्शन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज में नून लीग की सीट पर पीटीआई का उम्मीदवार कामयाब हो गया। हल्का पीपी 38 सियालकोट के तमाम 165 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ गए। पीटीआई उम्मीदवार ने नून लीगी उम्मीदवार को 7000 वोटों से शिकस्त दे दी। 117 गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीटीआई के उम्मीदवार एहसन सलीम बरियार 60,588 वोट लेकर कामयाब हो गए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल नून लीगी उम्मीदवार चौधरी तारिक सुबहानी 53,471 वोट हासिल कर सके। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में नून मुकद्दम कत्ल केस की समाअत हुई। मुलजिम जाहिर जाकिर जाफर को मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुलजिम को सख्त सिक्योरिटी में इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश किया गया। दौरान समाअत सरकारी वकील साजिद चीमा ने अदालत को बताया कि वक़्वे की सीसीटीवी वीडियोस हासिल कर ली हैं। सीसीटीवी फुटेज का फॉरेंसिक कराना है। मुलजिम का 3 दिन का मजीद जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाए। दौरान समाअत मुलजिम के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर कोई फॉरेंसिक टेस्ट कराना है तो तस्वीर लेकर करवा लें। मुलजिम को जिस्मानी तौर पर लाहौर ले जाने की ज़रूरत नहीं। समाअत के बाद अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। वक्फे के बाद अदालत ने मुलजिम जाहिर जाकिर जाफर का मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। 18 ज़िलहज को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह माइदा की आयत नंबर 67 नाजिल हुई। ए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ आपके परवरदिगार की तरफ से आप पर उतारा गया है इसे लोगों तक पहुंचा दीजिए। इस आयत के नाजिल होने पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस गदीर बयान की। इस वाक़े की याद में 18 ज़िलहज को मोमिनीन ईद गदीर मनाते हैं। 10 हिजरी को नबी आखिरी ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिज्जतुल विदा से फारिग हुए। सफ़र मदीना में तमाम शहरियों के रास्ते जुदा करने के मकाम गदीर पहुँचे तो सूरह माइदा की 67वीं आयत नाजिल हुई। ए रसूल, जो कुछ आपके परवरदिगार की तरफ से आप पर उतारा गया है इसे लोगों तक पहुँचा दीजिए, और अगर आपने ऐसा ना किया तो फिर ये समझा जाएगा कि आपने इसका कोई पैगाम पहुँचाया ही नहीं, और अल्लाह आपकी लोगों की शर से हिफाजत करेगा। बेशक खुदा काफरों को हिदायत नहीं करता। तमाम असहाबे पैगम्बर ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को मौला बनने की मुबारकबाद दी। रिवायत के मुताबिक इस ही दिन आयत अकमाल नाजिल हुई। आज मैंने तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बहैसियत दीन के पसंद कर लिया। ईद गदीर की मुनासबत से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जश्न और महफिल मिलाद का सिलसिला जारी रहा। अंचोली, जाफर तैयार, अब्बास टाउन और ओल्ड रिजविया समेत मुख्तलिफ इलाकों में हज़ारों अफराद ने इन महाफिल में शिरकत की। कराची की न्यू रिजविया सोसाइटी में भी जश्न का अहतमाम किया गया, जिसमें आशिकाने विलायत ने बड़ी तादाद और उलमाए कराम शरीक रहे। 18 ज़ुल्हज को पैगम्बर अकरम ने मौला अली की अमामत और विलायत का ऐलान फरमाया। इस मुनासबत से हर साल जश्न ईद गदीर मुल्क भर में मजहबी जोश व खरोश और इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाया जाता है। कराची की न्यू रिजविया सोसाइटी में भी ईद गदीर के मौके पर जश्न का इनेकाद किया गया था। उलमाए कराम समेत आवाम की बड़ी तादाद ने भी खुशी के मौके पर मिलाद में शिरकत की और मौला अली अलैहिस्सलाम की शान गुलहाय अकीदत पेश किया। ईद गदीर के मौके पर इमाम बारगाह सामरा और न्यू रिजविया सोसाइटी को बरकी कुमकुमों से सजाया गया था। लाइट जाने पर घर से खेलने के लिए निकलने वाली 6 साल की महम वालिदैन की दुनिया अंधेर कर गई। बच्ची को ज्यादती के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। लाश कचरे के ढेर पर फेंक दी गई। छोटी सी गुड़िया दरिंदगी का शिकार बन गई। कोरंगी के इलाके जी एरिया में दिल दहलाने वाले वाक़ये ने सबको रुला दिया। 6 साल की महम को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। गमज़दा बाप का रो रो कर बुरा हाल। कहा, लाइट जाने पर महम माँ से कहकर गई थी कि लाइट आएगी तो घर लौट आऊंगी, लेकिन दुनिया अंधेर करके चली गई। 6 साल की बच्ची से दरिंदगी पर मोहल्ले में सोग का आलम। नन्ही गुड़िया को याद करके मोहल्ले की खवातीन भी आबदीदा हो गईं। महम की मां पर कयामत गुजर गई। सदमे से निढाल लाचार मां गम की तस्वीर बनी हुई है। इसी इलाके से एक और लड़की समरा को घर से गायब हुए 48 घंटे गुजर गए, लेकिन पुलिस तलाश करने में नाकाम हो चुकी है। नमाज जनाजा के बाद नन्ही महम की नन्ही सी कब्र मकामी कब्रिस्तान में बना दी गई है।
वफाकी वजीर प्लानिंग असद उमर की जेर सदारत इस्लामाबाद में बारिशों की मौजूदा सूरत हाल और नुकसानात के बारे में अहम इजलास हुआ। इजलास में सेक्टर E11 में मौजूद नाले पर तजावुजात के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का फैसला किया गया है। इजलास में फैसला किया गया कि हालिया बारिशों के बायस जितनी भी कच्ची आबादियां इस्लामाबाद में हैं, इनके लिए तमाम मुल्हका सरकारी स्कूलों में सेंटर्स का कयाम अमल में लाया जाएगा। सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। E11 में कायम तजावुजात को फिलफौर खत्म किया जाएगा ताकि आइंदा किसी भी बड़े नुकसान से बचा जा सके, जिस पर इंतजामिया ने फौरी अहकामात जारी कर दिए हैं। सियालकोट में कामयाबी पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने सोशल मीडिया पर महाज संभाल लिया। PTI उम्मीदवार की कामयाबी पर समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट दाग दिए। वफाकी वजीर मुराद सईद ने सियालकोट में PTI की कामयाबी पर समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में लिखा, मुल्क के हर हिस्से से सनत याफ्ता मुजरिमों का सियासत से सफाया हो रहा है। सिंध में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत के कयाम से पूरे मुल्क की सियासत मुजरिमों से हमेशा के लिए पाक हो जाएगी। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने ट्विटर पैगाम में कहा कि मुस्लिम लीग नून को सियालकोट वालों ने भी मुस्तरद कर दिया। मुआविन खुसूसी इतलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने कहा, सियालकोट ज़िमनी इलेक्शन में PTI ने मैदान मार लिया। PTI उम्मीदवार ने 7117 वोटों की बरतरी फतह अपने नाम की। वजीर मुमलिकत इतलात और नशरियात फरूख हबीब ने लिखा, नून लीग के जीते हल्के ने इमरान खान के हक में फैसला दे दिया। कश्मीर के बाद सियालकोट वालों ने भी नून लीग का बयानिया दफन कर दिया। मरियम सफदर समेत सारे माफिया का गुरूर खाक में मिला दिया। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने इंसानी हुकूक के तंजीमों के रहनुमाओं से मुलाकात की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भारत को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर खबरदार कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने बयान में कहा कि अमरीका ने इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर भारत को खबरदार किया है कि इनका ये बयान इंसानी हुकूक के तंजीमों के रहनुमाओं से मुलाकात के बाद सामने आया है। एंटोनी ब्लिंकन का इंसानी हुकूक के तंजीमों के रहनुमाओं से मुलाकात के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक की निशानदेही की गई है। जमहूरियत की मजबूती इसे कबूल करने में ही है। अमरीका और भारत को मिलकर जमहूरी इक़दार पर खड़ा होना होगा। चीन से मुज़ाकरात के लिए तालिबान वफ्द बीजिंग के दौरे पर है, जहां उन्होंने चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। अफगानिस्तान को किसी भी मुल्क के खिलाफ सरगर्मियों का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। तालिबान ने चीन को यकीन दहानी कराई है। वाज़ेह रहे कि चीन को खदशा है कि गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद अफगानिस्तान उइग़ुर नस्ल के अलहदगी पसंदों की तहरीक के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ताहम तालिबान के तर्जुमान मोहम्मद नईम ने ऐसे खदशात को बेबुनियाद करार दे दिया। तालिबान ने बताया कि बीजिंग हुकूमत ने भी यकीन दहानी कराई है कि अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी नहीं की जाएगी। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया को उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। रुपए के मद्दे मुकाबले डॉलर की कदर में 50% का इजाफा हो गया है। बैरून मुल्क अदायगियों के दबाव के बायस ज़र मुबादला की दोनों मार्केटों में डॉलर के मुकाबले में रुपया कमजोर रहा, जिससे ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर की कदर 162 रुपए की सतह पर पहुंच गई। इंटर बैंक मार्केट में बढ़ती हुई तलब के बायस डॉलर की कदर में जबरदस्त उतार चढ़ाव के बाद 57 पैसे के इजाफे से 161.81 रुपए पर बंद हुई, जबकि ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर की कदर 50 पैसे से बढ़कर 162 रुपए की सतह पर बंद हुई। शामिल करते हैं हैरत अंगेज वाकयात BTV इंफोटेनमेंट में। नॉर्वे का आसमान एक शहाब साकिब से रोशन हो गया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि गैर मामूली तौर पर बड़ी जिसामत का शहाब साकिब जमीन की तरफ आता है। इसकी रोशनी धमाके की तरह फैलती है, जबकि इससे जोरदार आवाज भी बुलंद होती है। हुक्काम का कहना है कि ये शहाब साकिब दारुल हुकूमत ओस्लो के करीब कहीं गिरा है। शामिल करते हैं सेहत के अहवाल BTV हेल्थ में। पूरी दुनिया में तरह तरह के दिमागी और नफ्सियाती इमराज तेजी से बढ़ रहे हैं और अब माहिरीन कह रहे हैं कि अल्जाइमर और डेमेंशिया जैसे मर्ज तेजी से सर उठा रहे हैं। इस तनाजुर में दिमागी माहिरीन ने बाद तिबी टोटके फराहम किए हैं, जिन पर अमल करके हम तादेर अपने दिमाग को रोशन और तवाना रख सकते हैं। बैठना छोड़ें और सरगर्म रहें। जागने के बाद 85% वक्त तक कुछ न कुछ करते रहें और अपने आप को सरगर्म रखें। अव्वल याददाश्त अच्छी होती है, दोम खून की नालियां तंदुरुस्त रहती हैं। जैसे जैसे हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, हमारी याददाश्त मान पड़ जाती है। वर्जिश से न सिर्फ दिमागी हजम बढ़ता है, बल्कि अगर इसमें कमी वाक़ई हो रही हो तो वो भी सुस्त पड़ जाती है। इसकी तस्दीक MRI और दीगर तिबी तरीकों से भी हो चुकी है। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में।
महविश हयात ने मुल्क में खवातीन और बच्चों के खिलाफ बढ़ते जराइम के बारे में सवाल करते हुए मुतालबा किया है कि हुकूमत बताए मुल्क में निज़ाम की तब्दीली के लिए क्या कर रही है। अदाकारा महविश हयात ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मुल्क में खवातीन और बच्चों पर होने वाले जिनसी और सिनफी तशद्दुद के बारे में आवाज़ उठाते हुए कहा, हैशटैग्स और नारों का वक्त खत्म हो चुका। अदाकारा ने मुतालबा करते हुए कहा, हुकूमत बताए कि निज़ाम को तब्दील करने के लिए क्या करने जा रही है। माशरे में जिनसी और सिनफी तशद्दुद और इम्तियाजी सलूक की दीगर इकसाम को निज़ाम में तब्दीली के बगैर ख़त्म नहीं किया जा सकता। महविश हयात ने ट्वीट में कहा, तशद्दुद और ज़्यादतियों से पाक महफूज ज़िंदगी गुजारना हर शख्स का बुनियादी हक है। किसी को भी जिंदगी गुजारते हुए खौफजदा नहीं होना चाहिए। यह आसानी से काबिल कबूल नहीं है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बेहिसी कोई ऑप्शन नहीं है। किसी दूसरे मुतासरा शख्स का हैशटैग बनने से पहले एक्शन लेना होगा, कार्रवाई करनी होगी। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ खबरें BTV स्पोर्ट्स में। वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेली जा रही T20 सीरीज के दूसरे मैच के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड गयाना पहुंच गया है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे T20 मैच के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड गयाना पहुंच गया, जहां दोनों टीमें 31 जुलाई को मद्दे मुकाबिल होंगी। बारबाडोस से गयाना पहुंचने पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कोविड टेस्टिंग के रिजल्ट मनफी आने तक तमाम खिलाड़ी और स्टाफ एक रोज तक रूम आइसोलेशन में रहेंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के माबैन पहला T20 मैच बारिश की नजर हो गया था। इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया है। वेस्ट इंडीज ने 9 ओवर्स में 5 विकेट खोकर 85 रन बनाए थे। शामिल करते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। 334 मिलीमीटर बारिश के बाद जुड़वा शहर को बदतरीन सूरत हाल का सामना करना पड़ गया। मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए पाक बहरिया ने ऑपरेशन मदद का आगाज कर दिया। शहर इक़्तिदार में रात से जारी बारिशों ने तूफानी शक्ल इख्तियार की तो शहर में तबाही मच गई। चंद घंटों में बरसात के अगले पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए। 334 मिलीमीटर बारिश का पहला सैलाबी रेला बन गया। सेक्टर 11 में कई गाड़ियां तैरती नजर आईं। शहर की मरकजी और कुशादा सड़कें नदी नालों में बदल गईं। सैलाबी सूरत हाल पैदा होने से पानी घरों में दाखिल हुआ तो 2 अफराद जान से हाथ धो बैठे। तूफानी बारिशों के बाद सूरत हाल काबू से बाहर हुई तो पाक फौज के दस्ते अवाम की मदद को आ गए और कई खानदानों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर पहुंचाया। गिलगित बल्तिस्तान में हालिया बारिश के दौरान सैलाबी रेलों और लैंडस्लाइडिंग की वजह से कराक्रम हाईवे मुख्तलिफ मकामात से ब्लॉक हो गई। कराक्रम हाईवे अथॉरिटी के मुताबिक शाहराह ब्लॉक होने के बाद हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई, जबकि मकामी इंतजामिया की जानिब से शाहराह पर ट्रैफिक की बहाली के लिए लैंडस्लाइडिंग का मलबा साफ करने का काम शुरू कर दिया गया है। सैलाबी रेलों और लैंडस्लाइडिंग की वजह स्टोर वैली रोड भी बंद हो गया। दूसरी जानिब चिल्लास में दरियाए सिंध और खेनर नाले में तैरती लकड़ियों को पकड़ने की कोशिश में 2 बच्चे सैलाबी पानी में बह गए। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे btv_pk। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।